Okay, so the next topic here, it will be basic nature of hydroxides. Okay, and how they are going to vary in the periodic table is that basic nature of hydroxides is inversely proportional to the ionization energy, and we have already talked about the ionization energy. Here we are talking about the ionization energy of metals. Okay, so for example, if I am taking group 1, this is our group 1. What will be the hydroxides of group 1? LiOH, then NaOH, then we will have KOH, RbOH, and CSOH. These will be the all hydroxides of group 1 elements. Now if I talk about the which is going to be the most basic one, so what will be your answer? Out of LiOH and CSOH, which is going to be the most basic? Yes, your CSOH is going to be the most basic. So order will be like this, okay? Because आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा तो बेसिसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज. ऐसे अगर हम ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स कौन कौन से होंगे? BeOH whole twice, MgOH whole twice, CaOH whole twice, SROH whole twice, and BaOH whole twice. Again, the order is going to be like this only. Like from top to bottom, your basic nature of hydroxides are going to increase. So this is your basic nature of hydroxides. Write down this. And next point here is amphoteric hydroxides. Amphoteric hydroxides का मतलब क्या होता है? That they are going to show both the nature, that means acidic as well as basic, depending upon किसके साथ reaction कर रहे हैं. So there are some hydroxides which are amphoteric in nature. Okay, so for that BeOH whole twice is amphoteric in nature, AlOH whole thrice is amphoteric in nature, and ZnOH whole twice are amphoteric in nature. So write down these examples which show acidic as well as basic behavior. यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हो आप, will show acidic as well as basic behavior. Yeah, sorry, AlOH whole thrice. Thrice कर लो इसको. Done writing? Okay, next topic which we will be talking about here is your uh, reducing nature of the metals and non-metals. Okay, so here write down next point. In general, metals behave
as good reducing agent, whereas non-metals behave as गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. कैसे? ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या होता है? अभी तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ चुके हो. तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो वो अच्छा, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. और अगर हम रिडक्शन की बात करें, इन द केस ऑफ रिडक्शन दैट इज गोइंग टू बी द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है. एंड आपको पता है कि मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की. ओके, मेटल्स बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया सोडियम, सोडियम इज गिविंग सोडियम प्लस एंड 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है. दैट मीन्स सोडियम का क्या हो रहा है? यहाँ से Na से Na प्लस में जा रहे हो, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये किसकी तरह काम करेगा? इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा. ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर पे भी मेटल्स पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. सो हियर यू कैन राइट डाउन द ग्रुप with increase in metallic character, reducing nature of elements increases. ठीक है, जितना आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में आओगे साइज बढ़ रहा है. ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, मतलब आप इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव कर सकते हो. जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हो उतना ही अच्छा क्या हो रहा है? उसका ऑक्सीडेशन. और जितना ही उसका खुद का अच्छा ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे को क्या करेगा? वो उतना ही अच्छे से रिड्यूस करेगा. नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लो. एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period with increase in non-metallic character, oxidizing nature of elements increases. अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखने की टेंडेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो उतना ही अच्छे से अपने पास इलेक्ट्रॉन को रखेगा. इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब उसका खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन. और अगर खुद का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज. तो उस केस में हम क्या बोल देंगे उसको? इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, अब अगर ऑर्डर की बात करो, ग्रुप 1 की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ऑर्डर हमारे पास क्या होना चाहिए? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम. दिस शुड बी द ऑर्डर, बट ये गलत है. जो मैंने आपको बताया, टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है? ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस. यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. वो एक्सेप्शन किसका है? लिथियम का. सोडियम का सबसे कम होता है, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम, देन सीजियम एंड स्टार्टिंग में होता है लिथियम का. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. सो दिस इज योर एक्सेप्शन बिहेवियर. तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर सिर्फ लिथियम के केस में ऐसा होगा. एंड फॉर दैट मैटर ग्रुप 2 में ऐसा कुछ नहीं होता. ग्रुप 2 में बेरिलियम का कम होना चाहिए, बेरिलियम का कम है, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रॉन्शियम एंड देन बेरियम. यही ऑर्डर होगा. बट ग्रुप 1 में ये थोड़ा सा माइनर चेंज है. वो चेंज आ रहा है लिथियम में. अभी यहाँ पे नोट डाल के लिख लो. लिथियम possesses highest value of ionization energy among alkali metals, yet it behaves as best reducing agent among them. ओके,
इसका रीज़न मैंने आपको बताया था, हमने सब्लिमेशन और हाइड्रेशन एनर्जी की वहाँ पे बात करी थी। तो इट्स द सेम थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट। तो जल्दी से लिख लो इसको। रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है किसी भी एलिमेंट का, वो डिपेंड करता है किस पे? पहले तो सब्लिमेशन एनर्जी पे, देन उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पे, एंड देन हाइड्रेशन एनर्जी पे। सब्लिमेशन क्या होता है? जब आप सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे होते हो किसमें? गैशियस फॉर्म में, तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो ये एनर्जी पॉजिटिव होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी में गैशियस एटम से आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो, तो अगेन आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। और हाइड्रेशन एनर्जी में जो भी आपने आयन फॉर्म किया है उसको पानी के साथ आप मिक्स करते हो, तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। सो इस वजह से इसकी वैल्यू किस में आती है? नेगेटिव, नेगेटिव में। So, अगर इन तीनों की एनर्जी किसी भी एलिमेंट के लिए नेगेटिव आ रहा है तो वो एक्ट करेगा एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, क्योंकि एनर्जी लास्ट वाले केस में रिलीज हो रही है। सो इफ सम ऑफ ऑल थ्री एनर्जीज is negative, then element behaves as a good reducing agent. ओके, अब लिथियम के केस में क्या होता है? Li प्लस आयन undergoes excessive hydration। उसमें ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, बाकी सब में भी नेगेटिव ही रहेगी, बट लिथियम के केस में एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। सो लिथियम आयन अंडरगोज एक्सेसिव हाइड्रेशन एंड इट्स हाई हाइड्रेशन enthalpy, enthalpy बोलो एनर्जी बोलो, इट्स द सेम थिंग। इट्स compensates its high ionization energy, making it as a good reducing agent। ठीक है, तो लिथियम के केस में बाकी सब में भी अब लिथियम की अगर स्पेशली बात करूँ तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई होगा, क्योंकि साइज क्या होता है? काफ़ी छोटा। तो टॉप टू बॉटम आते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हाई है मतलब यू हैव टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी हियर। इन दिस केस में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, बट लिथियम के साथ में हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो ओवर पावर कर जा रही है इसके पॉजिटिव आयोनाइजेशन एनर्जी को, जिसकी वजह से फॉर दैट मैटर लिथियम बिकम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। राइट डाउन दिस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज हाइड्रेशन? सो एसोसिएशन ऑफ water molecules around a particular ion is known as hydration। तो अगर हम यहाँ पे लिथियम का ये एग्जांपल लेके चले तो लेट्स से आई हैव
लिथियम हियर और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो वाटर जो है इस लिथियम को चारों तरफ से सराउंड कर लेता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अब हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से इस पे डेल्टा नेगेटिव है, तो ये इसके साथ क्या कर लेता है, आयन डाइपोल। दैट मीन्स ये आपके पास आयन है, आयन क्या है, लिथियम, उस पर प्लस चार्ज है, किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वाटर के साथ। वाटर में पोल्स जनरेट हो रहे हैं, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, दो पोल्स हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तो हम क्या बोल रहे हैं इसको, डाइपोल। तो इट इज अ टाइप ऑफ आयन डाइपोल इंटरैक्शन। तो यहाँ पे आयन डाइपोल इंटरैक्शन होने की वजह से काफ़ी सारे आयन डाइपोल इंटरैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। कभी भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आयन डाइपोल इंटरैक्शन होने की वजह से अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। देखो इसको, अभी हाइड्रेशन एनर्जी कब कब ज़्यादा होगी, स्मॉलर इज द साइज ऑफ cation and more is the positive charge density on it, it will have more hydration. जितना छोटा होगा कटायन आपके साइज में, जैसे यहाँ पे लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है, जितना छोटा होगा आपका कटायन उतना ज़्यादा पानी क्या है उसको बहुत ज़्यादा सराउंड कर लेगा चारों तरफ से, और जितना चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। अब हमने चार्ज डेंसिटी की भी बात करी थी, लिथियम छोटा है साइज में, चार्ज डेंसिटी क्या होगा, जो भी उस पर चार्ज है डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो चार्ज तो एक ही प्लस है और वॉल्यूम कम है, तो चार्ज डेंसिटी मिला के क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है वैल्यू। तो इस वजह से smaller is the size of the cation, more is the positive charge density on it, it will have more hydration। तो अगर मुझे हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू लिखना है ग्रुप 1 में, तो सबसे ज़्यादा छोटा साइज लिथियम का होता है, देन सोडियम आ जाएगा, देन पोटेशियम आ जाएगा, देन रुबीडियम आ जाएगा, एंड देन सीजियम आ जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कई कई बुक्स में ऐसे आप AQ लिखा हुआ देखो, AQ का मतलब होता है एक्वस। ग्रुप 2 अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, तो अगेन बेरिलियम का साइज सबसे छोटा होता है, तो उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, देन मैग्नीशियम +2, देन कैल्शियम +2, then strontium +2, then barium +2. Okay, so this is the order of hydration energy. Write down this. Done writing? Okay. Next है ionic mobility. आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या है, मूवमेंट, कितना आसानी से आपके पास आयंस मूव करेंगे। अब अगर आपके पास आयंस मूव करेंगे तो वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे, कंडक्टेंस की। तो आयनिक मोबिलिटी या फिर कंडक्टेंस इज द सेम थिंग। ओके, वो प्रोपोर्शन होता है इनवर्सली किससे, ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी से।
ओके, जितना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा उतना ही कम मोबिलिटी होगी। कहने का क्या मतलब है, मैंने ये लिथियम ले लिया, लिथियम का साइज़ बहुत छोटा है, तो इसको चारों तरफ से वाटर ने क्या कर लिया है, सराउंड कर लिया है ना, पूरी तरफ से पूरा पानी पानी है यहाँ पे। साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा थी तो पानी ने ज़्यादा सराउंड कर लिया इसको। सोडियम के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, उसको भी वाटर सराउंड करेगा, बट इतना अच्छे से नहीं करेगा जितना लिथियम को कर रहा है, क्योंकि लिथियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा थी। तो अब अगर इस आयन को मूव करना है और यहाँ पे इस आयन को मूव करना है, तो कहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा आसान होगा। ये तो इतना ज़्यादा पानी से सराउंड हो गया है कि इसका खुद का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है, और यहाँ पे ये इतना ज़्यादा सराउंडेड नहीं है, तो फ्रीली थोड़ा बहुत फिर भी मूव कर सकता है। तो जो आयनिक मोबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन के। तो अगर मुझे ग्रुप 1 के लिए लिखना है, सो आयनिक मोबिलिटी लिथियम की सबसे कम होगी, देन सोडियम प्लस की होगी, देन पोटेशियम प्लस की, देन रुबीडियम प्लस की, एंड देन सीजियम प्लस की। ग्रुप 2 की बात करें, सेम ऑर्डर होगा, बेरिलियम +2 का सबसे कम, देन मैग्नीशियम +2, देन कैल्शियम +2, देन स्ट्रॉन्शियम +2, एंड सबसे ज़्यादा होगा मोबिलिटी बेरियम +2। तो ऑल्दो इनका साइज बड़ा होता है, बट हाइड्रेशन की वजह से यहाँ पे लिथियम को इतना ज़्यादा पानी सराउंड कर लेता है कि वो मूव नहीं कर पाता। आपने देखा होगा ना पुरानी मूवीज़ में, जो लोग जेल जेल में जो प्रिजनर्स होते हैं, उनके पैर में वो बांध देते हैं कुछ लोहे का बड़ा सा, वो मूव नहीं कर पाते प्रॉपरली। दैट इज़ द सेम थिंग हैपनिंग हियर विद लिथियम। ठीक है, लिथियम को भी पूरी पूरी तरफ से बहुत ज़्यादा वाटर ने सराउंड कर लिया है, जिसकी वजह से उसका मूवमेंट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी। ये कौन से मीडियम में है, इन एक्वस मीडियम, मतलब अगर पानी में है तो दिस इज द थिंग फॉर द मूवमेंट ऑफ योर आयंस। बट अगर आपके पास जो नेचर है उसका वो गैशियस है, अगर मान लो गैस फॉर्म में हम आयंस की मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वो उल्टा हो जाएगा। एनीवेज दैट इज नॉट गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, वो एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, इतना लिख लो। ओके, अभी लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबीडियम आयन एंड सीजियम आयन, इसको इतना ज़्यादा पानी सराउंड कर लेगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसको पानी मान लो इतना ही सराउंड किया, ज़्यादा नहीं किया, इसको पानी ने इतना सराउंड किया, इसका चार्ज डेंसिटी कम है और कम सराउंड किया, और इसको इधर सराउंड कम और कम सराउंड किया। तो ऑल टुगेदर अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि हाइड्रेशन का रेडियस क्या है, मतलब अब पानी ने जब सराउंड कर लिया है लिथियम को, तब हाइड्रेटेड आयन का रेडियस क्या रहेगा, क्योंकि इतना सारा पानी है इसमें, इसका रेडियस बढ़ जाता है, इसका कम होता है, इसका और कम होता है, इसका और कम, और इसका सबसे कम। तो हाइड्रेटेड रेडियाई का ऑर्डर विल बी लाइक दिस, मतलब जब आयन को पूरी तरफ से पानी ने सराउंड कर लिया है तब रेडियस क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे हम टर्म यूज कर रहे हैं हाइड्रेटेड रेडियाई इन एक्वस मीडियम। ठीक है, पानी के केस में आफ्टर हाइड्रेशन क्या रेडियस होने वाला है। डन राइटिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, कोई भी डाउट है पूछो। Okay, next topic is your most of the D block elements due to the presence of
unpaired electrons show paramagnetic behavior. That is, they get attracted towards magnetic field as the number of unpaired electron increases, paramagnetic behavior increases, and it is expressed in the terms of mu, which is your magnetic moment. ओके इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस और यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बीएम। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया होगा क्या लिखा है यहाँ पे, तो देखिए दैट मीन्स अगर किसी भी एलिमेंट के पास अनपेयर्ड, एक्सक्यूज मी, अगर किसी भी एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे हम स्कैंडियम ले रहे हैं, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 21। अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ओके, तो डी में हमारे पास कितने सब ऑर्बिटल्स होते हैं, हमने देखा है 5। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपने भरा, जब इस एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हो तो ये अनपेयर्ड है ना, इसके पास कुछ और दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है। पेयर्ड कब होता है, जब इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जैसे मैं 4s2 में फिल करूंगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हम इस तरीके से फिल करते हैं, वो पेयर्ड है। तो अगर आपके पास इट इज अनपेयर्ड इन नेचर, तो इन दैट केस वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ओके, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने का मतलब क्या होगा कि अगर आप उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, उसी को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब अगर किसी एलिमेंट के पास जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज़्यादा इट विल शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इफ आई टेक मैंगनीज, मैंगनीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। तो जब हम 3d5 में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, सो इसके 5 सब शेल हो गए। जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं पहले सिंगल सिंगल फिल होता है। ओके, तो इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, ज़्यादा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, उतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट होगा किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। तो पहले इन सब शेल्स को आप सिंगल सिंगल फिल करते हो, उसके बाद डबलिंग करना चालू करोगे। ठीक है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं आयरन का, एटॉमिक नंबर होता है 26। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 इस तरीके से लिखते हैं। अगर मुझे इसको फिलिंग करते हुए दिखाना है 5 सब शेल में, तो पहले एक एक करके सिंगल फिल करोगे और उसके बाद डबल फिल करना चालू करोगे। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। तो n का वैल्यू जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला लिखा, n का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट? तो अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे,
Question is, which ion will show the maximum value of magnetic moment? And your options are option A, so what will be your answer here? Which will have the maximum magnetic moment? Okay, sorry everyone, there was a network issue. Okay, fine. So which of the ion will show maximum value of magnetic moment? Tell me. ओके देखो, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, यू माइट फाइंड इट अ लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट। चलो, निकल की बात करें तो 28 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। अब +2 चार्ज है। +2 चार्ज का मतलब क्या है? आपने दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला होगा, है ना? तो जब भी दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं डी ऑर्बिटल में, याद रखना है इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स इफ यू आर रिमूविंग एनी इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले 4s से बाहर निकालोगे। तो 4s से जब आपने रिमूव कर दिया तो 3d में तो 8 ही बचा। इसके सबशेल को अगर आप देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, पहले सिंगल सिंगल फिल करो। 5, 6, 7 और 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कोबाल्ट की बात करो, एटॉमिक नंबर होता है 27। सो दिस विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। +2 चार्ज है मतलब दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो। अगेन इसमें इलेक्ट्रॉन किससे पहले बाहर निकालोगे? 4s से। तो डी में अगर चेक करोगे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं जो अनपेयर्ड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 3। आयरन की बात करोगे, अभी हमने देखा एटॉमिक नंबर 26 है, +2 चार्ज है, मतलब इस दो को आप बाहर निकाल रहे हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए यहाँ पे? 4। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, अगेन ये रहा, +2 चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हुआ है? 4s ऑर्बिटल से। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 5। तो जितने ही ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। तो आंसर क्या होगा? डी।
Got it? Understood everyone? आप लोग जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे होगे तो डी से निकाल रहे होगे, हम डी से नहीं निकालते हैं क्योंकि ये वाला शेल जो होता है इसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है, तो फिलिंग पहले करते हैं, बट जब फिलिंग पहले कर रहे हैं तो रिमूव भी जब इलेक्ट्रॉन करोगे तो पहले निकालोगे इलेक्ट्रॉन। ओके, ओके। सो एक जेई में क्वेश्चन आया था, आईआईटी का क्वेश्चन है, विच कंपाउंड विल शो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा? ऑप्शन ए इज FeSO4.6H2. Option B is CuSO4.6H2. Option C MnSO4.6H2. And option D NiSO4.6H2. What will be your answer? Yes, लिख दो, your answer is right. Good. बाकी लोग भी आंसर करो. यस, गुड, सबका आंसर करेक्ट है. संप्रीता, नाजनीन, शुक्तिका, अनन्या, स्निग्धो, एवरीवन इज राइट. गुड आंसर. भी नहीं मैंगनीज, क्यों? यहाँ पे सल्फर पे होता है 2- तो आयरन पे हो जाएगा +2. यहाँ पे भी सल्फेट पे होता है 2- तो मैंगनीज पे हो जाएगा +2. यहाँ पे भी +2, 2- +2 एंड 2-. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेंगे? मैंगनीज के पास. यहाँ पे n की वैल्यू होगी 5, जिसकी वजह से इट विल हैव द मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. एक लास्ट क्वेश्चन करो इस टॉपिक पे. फाइंड the value of magnetic moment for cobalt +2. ठीक है, तो cobalt +2 के लिए आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है. मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या है? म्यू का वैल्यू निकालना है आपको. ओके, तो फॉर दैट कोबाल्ट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए. उसके लिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. एटॉमिक नंबर होता है 27. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने अभी वहाँ पे ऊपर लिखा ही हुआ है. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. अभी आपको कोबाल्ट पे +2 चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया है? रिमूव किया होगा. तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की वजह से आप कहाँ से निकालोगे? सबसे पहले s से. इसको बाहर निकाल दिया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. n का वैल्यू हो गया 3. तो फॉर्मूला क्या है आपके पास? म्यू इज इक्वल टू √n+2, which will be √3, 3 plus 2, which will be √3 into 5, that means √15 यूनिट होगा बोर मैग्नेटॉन. गॉट इट? लिखो ये जल्दी से.
नेक्स्ट टॉपिक इज योर पैरामैग्नेटिक सॉरी डायमैग्नेटिक आयन। तो पैरा में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। डायमैग्नेटिक में क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इसमें नहीं होगा। तो बस डेफिनेशन लिख लो, विच डू नॉट हैव एनी unpaired electrons in it, and they do not get attracted towards magnetic field। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स में उनका कोई भी अट्रैक्शन फील नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कैंडियम प्लस 3, टाइटेनियम प्लस 4, Zn plus 2, etc. I will give you the example of Zn plus 2। Zn plus 2 की बात करें, बाकी आप निकाल सकते हो स्कैंडियम के लिए, टाइटेनियम के लिए। Zn plus 2 का एटॉमिक नंबर होता है 30। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। प्लस 2 चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा आपने बाहर। कहाँ से निकालोगे सबसे पहले, एस ऑर्बिटल से। 4s से बाहर निकलेंगे तो डी ऑर्बिटल जब आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कंप्लीटली फिल्ड है। दैट मीन्स देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो ये कौन सा बिहेवियर शो करेंगे, दे विल शो डायमैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, राइट डाउन दिस। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ, करके देखना। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। द कंपाउंड ऑफ vanadium possesses a value of magnetic moment mu is equal to 1.73 Bohr magneton. Then what will be the formula of vanadium chloride? तो आपको ये पता करना है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसी से आप फॉर्मूला निकाल पाओगे। ऑप्शन ए इज BCl2, ऑप्शन बी इज BCl3, option C is BCl4, and option D is BCl5. Which is the correct options out of these four? Write down this. Okay, next is your diagonal relationship. What is diagonal relationship? रेणु का याद करना पड़ेगा ना आपको, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 23 होता है। स्टार्टिंग में लिखवाए थे लर्न करने के लिए 21 से 30 कैसे लर्न करना है। आई हैव टोल्ड यू all these things are there in the notes. You have to find out and you have to learn. Like 1 से लेके 30 तक तो एटॉमिक नंबर पता होना ही चाहिए। Okay, now next topic is your diagonal relationship. In this, the first three members of
second period elements, that means lithium, beryllium and boron, they show similar properties with third period elements. तो with एक सेकेंड, with second element of third period. So what does this mean is, so let's open this periodic table. So what they are saying here is that if you are this lithium, beryllium and boron, ये सब कौन से एलिमेंट्स हैं? दीज आर योर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स. तो ये अपने थर्ड पीरियड एलिमेंट के सेकेंड एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज को मैच करते हैं. मतलब लिथियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है मैग्नीशियम के साथ रिप्रेजेंट करेगा, और बेरिलियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम के साथ मैच होंगी, और बोरॉन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिलिकॉन के साथ मैच होंगी. तो क्योंकि ये डायगोनली रिलेटेड है एक दूसरे से, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज योर डायगोनल रिलेशनशिप. So this thing has been observed. Okay, तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे है ये. सो यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली लिख भी सकते हो. सेकेंड पीरियड जो है आपके पास, उसमें हम ले रहे हैं लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन. थर्ड पीरियड के वी विल हैव इधर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन. तो लिथियम की प्रॉपर्टीज मैच कर रही है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज मैच कर रही है एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन की प्रॉपर्टीज मैच कर रही है सिलिकॉन के साथ, एंड दिस इज नोन एज योर डायगोनल रिलेशनशिप. Maybe why this is happening? As we move from top to bottom, size increases, while as we move from left to right, size decreases. Thus, moving diagonally, size remains ऑलमोस्ट सेम. तो यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से इधर जा रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से साइज इंक्रीज हो रहा है. तो जब आप डायगोनली मूव कर रहे हो यहाँ पे, यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो वहाँ पे साइज जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जा रहा है, जिसकी वजह से दे आर हैविंग अ सिमिलर प्रॉपर्टीज. Diagonal elements also have similar value of ionic potential. ठीक है, आयनिक पोटेंशियल क्या होता है? आयनिक पोटेंशियल इज योर चार्ज अपॉन रेडियस. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से. तो उनका आयनिक जो चार्ज और रेडियस के रिस्पेक्ट में अगर आप रेशियो निकालते हो, वो भी बहुत सिमिलर आता है, जिसकी वजह से दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जाम्पल, लिथियम का साइज होता है कुछ 1.23 एंगस्ट्रॉम, मैग्नीशियम का साइज होता है 1.36 एंगस्ट्रॉम. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. लिथियम प्लस का साइज ले लो तो इट इज़ 0.76 एंगस्ट्रॉम, और मैग्नीशियम +2 का साइज ले लो तो इट इज़ 0.72 एंगस्ट्रॉम. सो दीज हैव ऑलमोस्ट सिमिलर
radius, ionic radius, and here metallic radius. That is why they show similar kind of behavior, and this is known as your diagonal relationship. Write down this. हाँ, these are applicable for अनन्या for these elements only. इसके अलावा और किसी के लिए नहीं. Only for these elements जो मैंने मेंशन किए. Okay. Next and last property for here is most of the D block elements form interstitial compounds. That is, they entrap some small non-metals like hydrogen, carbon, nitrogen, or oxygen, etc., in their interstitial spaces और voids को भी सेम मतलब होता है. स्पेसेस का मतलब जगह, voids कुछ स्पेस क्रिएट करना. of their crystal lattice. जो सॉलिड फॉर्म में फॉर्म करते हैं लैटिस. जैसे मान लो मैं आयरन ले रही हूँ, ये आयरन के एटम्स हैं, ठीक है. तो जब ये आपस में ज्वाइन हो रहे हैं आयरन के एटम्स, ओके, तो उनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होता है, और उन स्पेसेस में छोटे छोटे जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं वो आके लग जाते हैं. जैसे ये हमने कर लिया आयरन का, यहाँ पे भी आयरन है, तो यहाँ पे बीच में छोटी सी जगह बच गई. इस छोटे से स्पेस में आप क्या पुट कर दो, कार्बन. अगर आपने यहाँ पे कार्बन ऐड कर दिया तो आपको स्टेनलेस स्टील पता है ना, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है, आयरन से बना होता है, और आयरन के जो स्पेसेस होते हैं उसमें कार्बन एटम प्रेजेंट होता है. दिस इज योर कार्बन. डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं मोस्टली, उनके जब क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होता है तो उनके जो बीच के स्पेसेस आते हैं उसमें अगर आप कोई नॉन मेटल को, स्मॉल नॉन मेटल्स को अगर फिट कर पाओ तो उस टाइप के प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड. इंटरस्टिशियल मतलब इन बिटवीन, और वहाँ पे कोई भी एटम आके ट्रैप हो गया. दिस इज हाउ यू प्रिपेयर स्टेनलेस स्टील. ओके, राइट डाउन दिस. जैसे टिन, आपने टिन भी सुना होगा, है ना. टिन इज ऑल्सो एन कॉम्बिनेशन. तो टिन जो है वो टाइटेनियम से बनता है. यहाँ पे आपके पास टाइटेनियम है, इधर भी ले लो टाइटेनियम. ऑल दिस आर टाइटेनियम. तो अब जो इनके बीच में छोटा छोटा सा स्पेसेस है, वहाँ पे अगर आप नाइट्रोजन पुट कर दो, दिस इज योर नाइट्रोजन. ओके, so this forms your TiN, tin. That is titanium nitride. Done writing?
नाज़नीन, इंटरस्टिशियल का मतलब ये है कि जब आपके पास यहाँ पे कोई भी, आपने ये मान लो आयरन का ले लिया मेटल, ठीक है, इस तरीके से स्फीयर के फॉर्म में आयरन के आपके मेटल्स जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे इन बिटवीन में अगर आप जो छोटी सी जगह बच रही है, कार्बन का साइज छोटा है, तो उस छोटी सी कार्बन को अगर इसके बीच के स्पेस में आप पुट कर दोगे, सो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है एंड इट बिकम्स स्टेनलेस स्टील। गॉट इट? Yes, ma'am. Fine. So from here we have like completed the chapter.